Good morning, students. So, students, yesterday we have seen about destructive distillation of coal. So, as I told you in that कि क्या process है destructive distillation? It is a process of heating a solid substance in a closed container, okay, in absence of air. So, जब कोल को हीट किया जाता है बहुत तेज़ टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, okay. So that is destructive distillation. Now today we will see about petroleum. So petroleum is a source from which fuels like petrol and diesel are obtained, and petrol is the fuel used in cars, motorcycles, scooters, etc., and heavy vehicles like tractors and trucks are run on diesel. So petroleum is also obtained by the fossilification of tiny plant and sea creatures known as plankton. तो plankton क्या है? Tiny plant और sea creatures है that lived in seas and lake many millions of years ago. तो plankton उसके नेम से ही पता चल रहा है, plank means plants or tiny sea creatures. So when these plankton died and were buried deep under layers of mud and sand, bacterial actions, heat and pressure turned them into oil. So सी क्लास ऐसे ही सेम जैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ, सेम ऐसे ही पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन हुआ. लेकिन पेट्रोलियम का फॉर्मेशन क्या हुआ? मीन्स डीप अंडर द लैंड, वो सॉरी लेक्स, ओके, सी के अंदर. तो जो टाइनी सी क्रिएचर्स थे, टाइनी प्लांट्स थे जो सी के, वो उसमें डिपॉजिट होते चले गए और फिर बैक्टीरिया के एक्शन से, हीट और प्रेशर की वजह से वो ऑयल में टर्न हो गए. सो द ऑयल्स वो formed in layers between the rocks. They can be found at the depth of a few kilometers or a few hundred kilometers. इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा जो पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वहाँ पे बीचों बीच में होती हैं सी के, ओके. सो इसीलिए क्योंकि जो ऑयल है जितना वो सी के अंदर पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. सो यू कैन सी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स. अब जैसे क्या है, यहाँ पे ये रॉक है, ठीक है, इनके पूरे चारों ओर वाटर है, यहीं पे बीच में इसकी ऑयल की लेयर होती है. फिर क्या करते हैं, वो एक वेल मीन्स यहाँ पे एक तरीके से कुआं सा खोद देते हैं, यहाँ पे पाइप्स जाते हैं अंदर तक, जिससे इनको फिर निकाल लिया जाता है. सो holes are drilled and the oil is pumped off. Around 50% of the world's oil is found in Middle East, and the first well was drilled in Titusville, Pennsylvania, USA in 1859. In India, oil was first found in Assam in 1867. Now it is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in South in Godavari and Krishna River basins. Now see processing of crude oil. So crude oil is a raw material which can be used after it is refined and cleaned. Crude oil is first heated at a temperature of 400 degree centigrade in a furnace. अब सबसे पहले you can see the diagram very carefully, ठीक है. एक ब्लास्ट फर्नेस है हमारी, वहाँ पे 400 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट करने के लिए रख दिया जाता है. And the vapors formed are passed into a tail fractionating column near its bottom. अब यहीं पे जो इसका ये बॉटम में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, सबसे पहले वेपर्स वहाँ पास होते हैं, ठीक. एज द वेपर्स राइज इन द कॉलम दे लूज हीट एंड हेंस देयर टेम्परेचर फॉल्स. फिर धीरे धीरे करके वो वेपर्स पास आउट होने लगते हैं और वो टेम्परेचर धीरे धीरे करके फॉल होने लगता है. Thus fractionating column maintains itself at different temperatures which decrease in magnitude in upper direction. धीरे धीरे करके वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ता है. अब the vapors with high boiling point condense first and the vapors with lower boiling point rise up and condense in different parts of the fractionating column. अब in refining crude oil we get useful components like petrol, diesel, kerosene, tar, wax and several other chemicals. Petroleum gas does not condense and escape from the top of the fractionating
column. Each fraction obtained during fraction distillation is a mixture of number of hydrocarbons. See, अब जैसे जैसे ये इसकी रिफाइनिंग होती जाती है तो उसमें से हमें बहुत चीज़ें मिलती जाती हैं। सबसे पहले क्या हमें मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन। बिटुमेन क्या है, ये रोड्स और ऊपर रूफिंग जो हमारे घर में होती है उसके लिए काम में आता है। फिर आया फ्यूल ऑयल। इस फ्यूल ऑयल के लिए शिप के लिए या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल या वैक्सेस इसके लिए काम में आता है, ठीक है। अब यह हमें मिलेगा फिर उसकी और ज़्यादा रिफाइनिंग के बाद डीजल, ठीक। फिर और रिफाइनिंग होगी तो होगा केरोसिन, फिर और ज़्यादा रिफाइनिंग करके फिर आता है हमारा पेट्रोल। फिर यहाँ पे एक चीज़ और मिलती है हमें, नैप्था। नैप्था इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल, ठीक है। जैसे जो नैप्थलीन बॉल्स वगैरह हैं वो इससे प्रिपेयर करी जाती हैं और भी उसमें काम में लिया जाता है। नैप्था एज अ फ्यूल इंजन में भी काम में आता है, ओके। अब और रिफाइनिंग होके ब्यूटेन और प्रोपेन गैस निकली। अब इस गैस को ज़्यादातर हम एलपीजी सिलेंडर के लिए या रिफाइनिंग गैस या ओवन में जो गैस होती है, सिलेंडर्स में जो गैस होती है वो गैसें इससे मिलती है हमें। तो इट मीन्स कि जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती हैं। ये नहीं कि केरोसिन की अलग रिफाइनिंग हो रही है, डीजल की अलग, मीन्स एक पेट्रोलियम की ही रिफाइनिंग से हमें ये सारी चीज़ें ऑब्टेन हो जाती हैं। एंड यू हैव सीन, जो वैसलीन तुम लोग यूज़ करते हो वो भी इसी की पेट्रोलियम की ही रिफाइनिंग से हमें ऑब्टेन होती है। ये जो तुम लोग देख रहे हो पैराफिन वैक्स, ये भी एक तरीके से वही वैसलीन है जो हम लिप्स पे लगाते हैं या फट जाता है हमारा कुछ वैसलीन, जो विंटर्स में तो ज़्यादातर मोस्टली सबकी पॉकेट्स में भी होती है वो छोटी वाली, ओके। सो दीज ऑल आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम।